Hi, good afternoon, everyone. Just wait for like 2 minutes. There are a few more students who are joining from my other batch. Just give me 2 more minutes. Good afternoon, Srishti. Good afternoon, Jessica. Good afternoon, Devansh. Good afternoon, Pranav. Okay, so for the people who've joined, just tell me what do you understand by the word limits? This is the beginning of calculus. Okay, just to make clear to you that from this chapter, usually if you look at DU, so calculus में से usually the maximum number of questions that you get is about 4 to 5. Okay, the maximum. Okay, and usually अगर जो questions होते हैं, what are the questions like? They give you probably one question or maximum two from limits. They give you one or maximum two questions from differentiation, and maximum 1 to 2 questions from integration. Usually this portion is less integration वाला. अगर 1 or 2 questions आते हैं usually इन दोनों में से होते हैं, but yes, sometimes you get 1 or 2 questions from integration also. Okay, so not that much of a portion, but yes, चाहे एक दो question ही है, but you have to do the entire part. Okay, and I'm sure you have studied studied limits well. Now tell me what you understand by the word limits. What is limits? What do we use limits for? What do we use limits for? Tell me, what do you understand? I mean, why do we use limits actually? Why do we have to use limits? Any answers? All of you, most of you have studied. Okay. Need says value that a function approaches. Approaching values, yes. What else? Continuity, okay, yes, that's linked to limits.
But why do we use limits? Yes, Avneet is correct. Value that a function approaches. What is the limit? Limit is a value that function approaches. Why do we use limits actually? When we studied algebra, for example, we had a function like, let's say, this. So we had solutions to this function, right? At every value. We had solutions to this function at every value of x. x को कुछ भी डालोगे वैल्यू यहाँ पे सोल्यूशन आएगा ही आएगा, है ना? आएगा ही आएगा. तो कभी कोई एक्सेप्शन नहीं रहा. But had it been a function like this, divided by maybe x minus 2, had it been a function like this, so does it exist for all values of x? Does it exist for all values of x? Okay, so what value of x will not be possible here? Yes, it will not exist for x is equal to 2, correct? Because when you put x is equal to 2, when we did inequalities, if you remember, when we did inequalities, there were some parts where, I mean, whatever there was there in the denominator, the value for that part did not exist, okay? Because this function will not exist for x is equal to 2. Why will it not exist? Because 2 minus 2 becomes 0, right? 2 minus 2 will become 0, and that will make this function discontinuous. That will make this function discontinuous. मतलब ये continuous values नहीं आ रहे इसके, ये discontinuous function है, right? So x is equal to 2 पे इसका कोई value नहीं आएगा. तो इसको हम function को algebraically solve नहीं करते हैं. Ideally तुम देखो तो ideally this is x minus 2 x plus 2 divided by x minus 2 only. And we can क्या कर रहे हैं हम लोग factorization कर रहे हैं. We can cancel out the common factor. We can cancel out common factor here. And we are left with x plus 2. Ideally, this function is x plus 2 only. So ideally, it's like a linear function. जो यहाँ पे अगर मेरी x की वैल्यू 0 है तो यहाँ 2 से निकल के जा रहा है फंक्शन विद स्लोप 1, ठीक है ना? लेकिन ये बिल्कुल कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है. एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ये वाली वैल्यू पे x इज इक्वल टू 2 पे जो भी इसकी वैल्यू आ रही है यहाँ पे वो नहीं आनी चाहिए. तो देयर इज अ डॉट हियर, ओके? ये डॉट क्या बता रहा है कि ये फंक्शन यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, राइट? ठीक है, तो ये सबको पता है ना. ये दिस इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन. तो इसको, इस फंक्शन को, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को हम लोग को अगर सॉल्व करना हो, वी डोंट सॉल्व इट यूजिंग द एक्चुअल अलजेब्रा, और वी से दैट इट डजंट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 2. तो हम लोग लिमिट से इसको सॉल्व करते हैं. व्हाट इज लिमिट? Limit, as Avneet and Arshdeep had mentioned, these are approaching values. We look at the approaching values towards x. For example, approaching values मतलब x is equal to 2 पे ही exist नहीं करता ना. तो x is equal to 2 तक की मैं कुछ values try करूंगा इसमें, इसी function में. For example, I can take randomly a value of 1.5 maybe. तो 1.5 अगर इसके अंदर मैं put करता हूँ, what do I get approximately? 1.5 plus 2, ये पता है ना मेरे को, 1.5 plus 2 3.5 आ जाएगा. तो 1.5 पे मेरी 3.5 वैल्यू एग्जिस्ट करेगी. व्हेन x इज 1.5, माय fx इज गोइंग टू बी 3.5, ओके? ऐसे में और कुछ वैल्यूज ट्राई करूंगा. आई कैन पुट 1.6, आई विल गेट अ वैल्यू ऑफ 3.6. आई कैन पुट 1.7 एंड आई विल गेट अ वैल्यू ऑफ 3.7, ओके? ऐसे ही करते करते 1.9, तो आई विल गेट अ वैल्यू ऑफ 3.9. ऐसे ही आई विल गेट अ वैल्यू ऑफ लेट्स से 1.999 कुछ ऐसा आएगा, तो मेरे पास आएगी वैल्यू 3.999. So I can safely say that when I'm trying to reach, when this x is trying to reach 2, the fx is trying to reach approximately 4, okay? Fx is trying to reach approximately 4. So I would not say that this function is solved as such. I would say the limit of this function when x tends to 2, instead of saying fx, जैसे हम fx लिखते हैं, fx is equal to 4 at x is equal to 2, ऐसा नहीं लिखेंगे हम लोग. We'll say the limit of this function when x approaches 2, limit of this function when x approaches 2 is 4, okay? That's how we write it. क्या बोल रहे हैं? When x approaches 2, fx approaches 4. That's what a limit means. Limit मतलब limit is used just like function. Limit function की तरह use करते हैं हम लोग. But what does limit explain to us? Limit does not give us the actual value, but it gives us the close, approximately close values, okay? That's how we solve this, okay? Now, अब ये मैंने ट्राई किया सिर्फ
लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड मतलब अगर एक नंबर लाइन लो तुम, एक्स की वैल्यूज कंसिडर करो, 2 पे जाके मैं बोल रहा था फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, मैंने सारी इधर वाली वैल्यूज चेक करी है। आई कैन ऑल्सो ट्राई इधर वाली वैल्यूज, ठीक है ना, आई कैन ऑल्सो ट्राई दिस साइड वाली वैल्यूज। इट्स लाइक एक रास्ता चल रहा है, एक रास्ता चल रहा है, लेकिन रास्ते में जाके मेरे को चेक करना है ये 2 वाली जगह पे ये रास्ता है कि नहीं है। तो मैं इधर से चेक करता हूँ, मेरे को फंक्शन तो बता रहा है कि यहाँ पे नहीं है, ये वाला रास्ता नहीं है यहाँ पे, तो मैं दूसरी साइड से भी एक बार चेक करूंगा। अब दूसरी साइड से मैं चेक कैसे करूंगा, ये ऐसे ही वैल्यूज में जैसे मैं पीछे से वैल्यूज लेके आ रहा था, ऐसे मैं आगे से वैल्यूज लाना शुरू कर देता हूँ, 2 से बड़ी वैल्यूज। व्हाट वैल्यूज शुड आई ट्राई? आई कैन प्रॉब्ली स्टार्ट फ्रॉम, जैसे मैंने 1.5 से स्टार्ट किया, आई कैन स्टार्ट फ्रॉम 2.5। if I put x to be 2.5, fx is going to be 4.5। ऐसे कम होगी वैल्यू 2.4, आई विल गेट 4.4। 2.3 आ जाएगा, 4.3 आ जाएगा, 2.1 आ जाएगा अगर, तो 4.1 आ जाएगा, राइट। 2 पॉइंट और कम कर दो, 0.1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 4.01 आ जाएगा, 2.001 हो जाएगा, तो ये 4.001 हो जाएगा। समझ रहे हो? एज एक्स अप्रोचेस 2 फ्रॉम द राइट हैंड साइड, एफ एक्स अप्रोचेस 4। समझ रहे हो? तो बेसिकली इसलिए इस पार्ट, यस यस जगरूप, ठीक है, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो जगरूप। सो आई कैन बेसिकली से कि ये दोनों साइड से मैंने चेक किया, इस रास्ते को मैंने दोनों साइड से चेक किया है, अप्रोच करते हुए ऑलमोस्ट सेम वैल्यू पे आके रुकेगा ये, राइट। सो आई कैन आइडली से, अच्छा इसको हम जो इसकी जो लैंग्वेज यूज करते हैं लिमिट्स में, वी वर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, वी कॉल इट लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। सो आई कैन प्रोबेबली राइट इट, जस्ट अ सेकंड, आई कैन राइट इट दिस वे, कि जब मैं 2 माइनस लिखने का क्या मतलब है कि 2 के पीछे से मैं आ रहा हूँ आगे, राइट, 2 के पीछे से आगे आ रहा हूँ, तो इसकी आई एम जगरूप, आई एम ट्राइंग वैल्यूज फ्रॉम बोथ साइड्स नो, मैं x की वैल्यूज 2 के लेफ्ट से ट्राई कर रहा हूँ और 2 के राइट से भी ट्राई कर रहा हूँ, कि 2 पे आते आते मेरा fx कहाँ अप्रोच करता है, वो 4 पे ही पहुंचता है ना। जब मैं लेफ्ट साइड से आया तो भी ये 4 पे पहुंच रहा है, जब मैं राइट हैंड साइड से आया तो भी ये 4 पे पहुंच रहा है। दिस 2 नेगेटिव, जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज, दिस 2 नेगेटिव मींस कि ये लेफ्ट से आ रहा है, दिस 2 पॉजिटिव मींस ये राइट से आ रहा है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट and this is called right hand limit, okay। And we can easily observe that left hand limit for fx is equal to right hand limit for fx। जब भी ऐसा होगा, I would say limit for this function exists at x is equal to 2, okay। Limit for this function exists at x approaches 2 and limit of this function is 4। So limit is nothing but an extension of function, and it is an extension of function where the function does not exist। Are you getting this? Have you all understood this? Whatever I've spoken till now, you can write down if you want to, okay। You can note it down if you want to, I'm just giving you 2 minutes to note it down if you want to। ठीक है, ग्रुप कर दिया, स्क्रोल अप कर लो, नोट डाउन, डन एवरीवन। अब ये बेसिक इंफॉर्मेशन तुम सबको पहले पता भी होगी, आई एम जस्ट गिविंग यू अ रिफ्रेशर ऑफ ऑल दिस, ठीक है। हैव यू नोटेड डाउन ऑल ऑफ यू?
तो तुमने देखा इसका जब मैंने ग्राफ बनाया दिस फंक्शन इट वाज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2. ओके, तो यूजुअली अब लिमिट से क्या समझना है तुम्हें, यूजुअली लिमिट्स आर यूज्ड instead of functions when the functions do not exist at certain values. Okay, that's where limits are used. Okay, अब ऐसे ही I can have, अगर ये हो गया चलो मैं आगे चलता हूँ, I can have another function. For example, so x minus 2 मॉडुलस के अंदर है, नीचे x minus 2 है. ठीक है, तो मेरे को बताओ what is the value of this function at x is equal to 3, sorry x is equal to 2, sorry, what is the value of this function at x is equal to 2? What is the value of this function at x is equal to 2? Yes, प्रणव कौन सा निकाल रहे हो ये? अच्छा तुमने शायद 3 पे निकाल दिया, मैंने 2 पे बोला प्रणव, तो गलती से मैंने 2 बोल दिया था, 3 बोल दिया था. जगरूप गलत निकाल रहे हो. देखो 2 डालने पे डिनोमिनेटर तुम्हारा 0 नहीं हो रहा, न्यूमरेटर भी 0 हो रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 हो रहा है, तुम्हारे पास 0/0 आ रहा है. राइट जगरूप, समझ रहे हो ये? ऑब्वियसली नॉट डिफाइंड है फंक्शन, तो लिमिट यूज होएगी यहाँ पे. ये कौन कह रहा है आंसर -1? हाउ डू यू गेट -1? जेसिका, at x is equal to 2 you would not get -1. हाँ 3 कर लिया तुमने शायद, 3 नहीं वो 3 मेरे से गलती से निकल गया था मुझसे. So at x is equal to 2 this function is not defined because your denominator is going to become 0, your numerator is going to become 0. तो 0/0 तो एग्जिस्ट नहीं करता ना, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं इसको, इनडिटर्मिनेट फॉर्म. ठीक है, अब ऑब्वियस है यहाँ पे we'll use limits. ओके, अब ऐसे ही जैसे पिछला मैंने किया, you can start putting the values. देखो x2 पे चेक करना है ना, you can start putting the values from 1.5 and so on. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से you can try putting the values. You can probably put 1.5, x की वैल्यू 1.5 डालोगे तो क्या आएगा तुम्हारे पास? ओके जगरूप, टेल मी what is the value of fx when x is 1.5? क्विकली सारे वैल्यूज क्विकली बोलने हमने. इफ इट इज 1.5, 1.5 माइनस 2 कितना हो जाएगा? -0.5, लेकिन बाहर पॉजिटिव निकलेगा 0.5, डिवाइडेड बाय दिस इज 1.5 माइनस 2, -0.5 कटेगा तो -1 आएगा. राइट, सो वी गेट द वैल्यू एज -1. इफ यू पुट समथिंग लाइक 1.7 मे बी, तो भी क्या आ रहा है? सेम ही आएगा, -1. इफ यू पुट समथिंग लाइक 2 पे अप्रोच करना है ना, 1.9 मे बी, you'll again get -1. You put 1.99 maybe, तो भी तुम्हारे पास -1 ही आने वाला है. ठीक है ना, तो तुम देख रहे हो बेसिकली व्हेन x अप्रोचेस 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, fx क्या अप्रोच कर रहा है? -1. सो आई कैन प्रोबेबली से कि लिमिट ऑफ दिस फंक्शन व्हेन x अप्रोचेस 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, दिस फंक्शन इज -1. समझ रहे हो? लिमिट ऑफ दिस फंक्शन फ्रॉम left hand side is going to be -1. And similarly from right hand side, what is the limit? बताओ जरा फटाफट. Limit from right hand side, right hand limit क्या होगी इसकी? You can start putting the values again. Correct Arshdeep, correct Jessica, correct Abhya. You start putting the values. 2.5 डाल लो, 2.5 डालते हो तो तुम्हें देख के पता चल रहा है 2.5 minus 2, ये 0.5 आएगा, नीचे भी 2.5 minus 2, 0.5 आएगा, कैंसिल आउट 1 आ गया. 2.4 डालते हो you again get 1, 2.1 डालते हो again you'll get 1, 2.01 कुछ भी डालना चाहो डाल लो. 2.01 minus 2 is going to be 0.01 by 0.01, cancel out 1 आएगा. So right hand side से what are we getting? Right hand side से what are we getting? Limit of this function is +1. अब मैंने तुम्हें ऊपर बताया था कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन
is not equal to right hand limit of this function. So limit at x is equal to 2 does not exist. So limit of this function at 2 does not exist. Okay, ठीक है. तो एक पहला टाइप का क्वेश्चन तुम्हें आ सकता है कि whether the limit of function exists or not. Okay, तो उसमें तुम्हें ऐसे चेक करना है whether the limit of a function, whether the limit of that function exists or not. Okay, understood. तो अगर limit of function exists or not चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे? कैसे चेक करेंगे? I'll check the left hand limit, I'll check the right hand limit, and I can verify whether the limit for that function exists or not. Is it clear to everyone? सबसे पहली चीज, सबसे इजी, सबसे पहली चीज यही है. बिल्कुल ठीक है जगरू. You can check the left hand limit, you can check the right hand limit, and then you can verify whether the limit exists for this function or not. Okay, ठीक है. Is it clear to everyone? चलिए आगे. अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने वाला वो तुमने एक मे बी ड्यूरिंग स्कूल मेथड किया होगा कि लिमिट अगर x टेंड्स टू a तक दी है तो उसको h टेंड्स टू 0 तक बनाना एंड ऑल. वी डोंट रिक्वायर दैट. ओके, अगर तुमने ये पढ़ा है we will not require that क्योंकि usually you don't get questions on find the left hand limit or right hand limit. और अगर आएगी भी तो हमें पता है कैसे निकालनी है. We can easily find it out, the left hand limit and the right hand limit. Okay, is it clear to everyone? ठीक है, अब आगे चलते हैं. अब लिमिट्स को सॉल्व करने के लिए, फॉर एवरी क्वेश्चन लिमिट्स को सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास बहुत सारे वे आउट्स होते हैं, तरीके होते हैं. जैसे अभी हमने वी डिड दिस, ये लिमिट हमने सॉल्व करी. मैं दोबारा लिखता हूँ इसको. व्हाट इज द लिमिट ऑफ फंक्शन at x tends to 2 when fx is equal to x square minus 4 by x minus 2. ये भी अभी हमने ऊपर किया था. So what did we do? We did factorization, simple factorization. This is x minus 2, this is x plus 2 by x minus 2. कैंसिल आउट करो और यही जो लिमिट में उसने जहां तक की अप्रोच करती हुई वैल्यू बताई है वो वैल्यू यहाँ पे डाल दो. 2 plus 2 you'll get 4. So simple factorization. Limits can be solved using factorization. Okay. ऑब्वियसली जगरूप जहां फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता वहीं तो हम लिमिट यूज करते हैं. हाँ लिमिट हाँ ऐसे स्टैंडर्ड फंक्शन में भी लिमिट हम यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई कैन आस्क यू व्हाट इज द लिमिट ऑफ x square minus 5x plus 6 when x tends to 2. I can ask you this. अगर सिंपल ऐसा क्वेश्चन आएगा, देखो ये फंक्शन की तरह ही सॉल्व होएगा, सिंपल सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, अगर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म जहाँ यस जैसे यहाँ पे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रही है तो मेरे को फैक्टराइजेशन करनी पड़ गई. तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिंपल आई पुट द वैल्यू एंड चेक द आंसर. टेल मी व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट हियर. ठीक है ना जगरूप, आ गया ना आंसर. अब तो सीधा सीधा एक वैल्यू डालो यहाँ पे. कोनिका नो द आंसर इज नॉट 4. यू पुट द वैल्यू 2 हियर. एक्चुअली ये क्या है, x minus 2 x minus 3 है ना. When you put 2, 2 minus 2 will become 0, 2 minus 3 will become minus 1. 0 into minus 1 is 0. Just like you use the functions, just like you solve the functions, you'll get a value 0. So you can solve it using direct substitution. You understand? जहां पे indeterminate form नहीं बनेगी वहां पे तुम सीधा सीधा substitution कर सकते हो. ठीक है, understood? और जहां पे factorization करनी पड़ेगी वहां factorization करेंगे. For example, let me give you another example. What is the limit of this function when x tends to 2? By maybe okay. अब बताओ, अब देखो इंडिटरमिनेंट फॉर्म बनेगी, नीचे 2 स्क्वायर माइनस 4 यहाँ 0 आ जाएगा. इफ यू सी 2 पुट करते हो तो न्यूमरेटर भी 0 आता है, 2 पुट करते हो डिनोमिनेटर भी 0 आता है.
अगर 2 पुट करने पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 0 आ रहा है, इसका मतलब कि 2 x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ बोथ ऑफ दीज। कभी भी अगर दोनों में 0 आ रहा है ना कुछ डालने पे, तो इसका मतलब x माइनस 2 जो है, जो भी यहाँ पे x टेंस टू a होता है, अगर तो x माइनस a जो है वो फैक्टर है दोनों का, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। वो कॉमन फैक्टर निकाल के यू कैन कैंसल इट आउट। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर निकाल के कैंसिल आउट करो इसको, इट विल बी x माइनस 2 x माइनस 3, नीचे x स्क्वायर माइनस 4 को लिखोगे x माइनस 2 x प्लस 2, तो जो कॉमन है यू कैंसिल इट आउट, पुट द वैल्यू एंड यू कैन गेट द आंसर। ओके, दिस कॉल्ड फैक्टराइजेशन मेथड। तो फटाफट आंसर बताएगा प्रणव, चेक योर आंसर अगेन। एक बार आंसर दोबारा चेक करो प्रणव, क्या आंसर है? गुड गुड, वेरी गुड। गुड, इट्स -1/4, वेरी गुड। देवांश, तुम्हारा आंसर लिखा नहीं आया। सो यहाँ पुट करो 2, 2 माइनस 3 इज गोइंग टू बी -1, 2 प्लस 2 इज गोइंग टू बी 4, -1/4, सिंपल। ठीक है, फैक्टराइजेशन समझ आई ना, कहाँ कर सकते हो? एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। फाइंड आउट द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन व्हेन x टेंड्स टू 3। x raised to power 4 minus 5x cube plus 27x minus 27. Find out the limit of this function when x tends to 3. Solve this. पहली बात तो सब्स्टिट्यूशन करके देखो ना, 3 डाल के देखो कि क्या सॉल्व कर पा रहे हो। अगर 3 डालने पे सॉल्व नहीं होएगा और 0 0 आएगा दोनों में, इसका मतलब x minus 3 would be a factor. You'll have to cancel that out. Solve this question quickly. करो फटाफट। Any answers, anybody? ऑब्वियसली सृष्टि 0/0 ही आएगा इसके अंदर, क्योंकि देखो 3 डालने पे तो ये ऊपर वाला न्यूमरेटर 0 बन जाएगा, 3 डालने पे डिनोमिनेटर भी 0 बन जाएगा। इसका मतलब x माइनस 3 जो है, इट्स अ फैक्टर ऑफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो तुम्हें इसको भी x माइनस 3 से डिवाइड करके देखना है क्या आ रहा है, इसको भी x माइनस 3 से डिवाइड करके देखना है क्या आ रहा है, और x माइनस 3 ऊपर नीचे कैंसिल करना है, देन सॉल्व इट। करेक्ट आंसर अवनीत। ओके, any other answers? Avneet has got the correct answer, very good. अब इसमें तुम्हें डिवीजन यूज करना पड़ेगा अपना, यूज द डिवीजन। x माइनस 3 से डिवाइड करो इसको सारे को। Solve this and check what do you get here.
एनी आंसर्स? इतना टाइम, बहुत टाइम ले रहे हो। नहीं अर्शदीप, देखो x माइनस 3 है, you get x square here, so you get x cube minus 3x square when you solve this. So this is plus 3x square minus 7x square is minus 4x square plus 15x. Solve this again, minus 4x. So minus 4x square minus 3 minus 3 minus 4 12 हो जाएगा, plus 12x cancel. 15 minus 12 is 3x minus 9, तो x minus 3 plus यहाँ 3 कर दो, 3x minus 9 cancel हो गया ये. So what have we get in the numerator? What have we got in the numerator? It's x minus 3x square minus 4x plus 3. ऐसे डिनोमिनेटर में भी चेक करो. यस संचित, करेक्ट आंसर. डिनोमिनेटर में भी ऐसे चेक करना पड़ेगा तुम्हें. You've got x raised to the 4 minus 5x cube plus 27x, sorry for that noise, minus 27 divided by x minus 3. Check it out. What do you get here? क्या आएगा तुम्हारे पास, चेक कर लो. You're going to get x cube here. So x raised to the 4 minus 3x cube. Solve this. This gets cancelled out. Plus 3x minus 5x square minus 2x cube. और किसी का आंसर आया है? जैसिका, करेक्ट आंसर. प्लस 27x माइनस 27. ठीक है, यहाँ माइनस 2x क्यूब है, तो यहाँ पुट करो वैल्यू माइनस 2x स्क्वायर. सो अगेन गेट माइनस 2x क्यूब, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 6x स्क्वायर. अच्छा, स्क्वायर वाली टर्म यहाँ पे थी ही नहीं आई गेस. हाँ, तो तुम्हारा ऐसे 6x स्क्वायर नीचे आ जाएगा. ठीक है, तो दिस गेट्स कैंसल्ड आउट, प्लस साइन हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा. सो माइनस 6x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 27, ये नीचे आ रहा है. अब तो पता चल गया आएगा तुम्हें क्या करना है. जैसिका करेक्ट आंसर है, जगरूप रॉन्ग आंसर है. सो माइनस 6x पुट करो यहाँ पे, यू गेट माइनस 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 6 प्लस 18 हो गया, 18x कैंसिल हो जाएगा ये, माइनस 9x माइनस 27, यहाँ क्या कर देंगे, प्लस 9. So you'll get 9x minus 27, which gets cancelled out. This is what we are left with. So डिनोमिनेटर क्या बचा मेरे पास, न्यूमरेटर लिखा था मैंने पहले, डिनोमिनेटर भी लिख रहा हूँ अभी. x minus 3 x cube minus 2x square minus 6x plus 9. ठीक है ना, ऑब्वियस ये कटना ही था. दिस वाज अ कॉमन फैक्टर, ये कैंसिल आउट होना ही था. ओके, दिस गेट्स कैंसिल आउट. अभी अगर 3 पुट करते हो, इफ यू पुट 3 एंड यू चेक, तो क्या हो रहा है, मेरे ख्याल से फिर से तुम्हारा 0 आएगा आई बिलीव. अगर 3 डालते हैं तो 3 स्क्वायर 9 माइनस 4 3 12 प्लस 3. यस, 12 माइनस 12 0 आ रहा है. इसमें भी 3 7 माइनस 3 स्क्वायर 9 2 18 माइनस 6 3 18 प्लस 9, ये भी 0 आ रहा है. फिर से इंडिटरमिनेट फॉर्म है ना. x माइनस 3 फिर से दोनों में 0 दे रहा है, 3 डालने पे 0 दे रहा है. इसका मतलब x माइनस 3 फिर से आएगा, x माइनस 3 से फिर से डिवाइड करना पड़ेगा. x माइनस 3 फिर से कॉमन फैक्टर है, तो इसका x माइनस 3 कॉमन फैक्टर है, इसका भी x माइनस 3 कॉमन फैक्टर है. वो निकालो, दोबारा दोबारा काटो. ओके, इफ यू लुक एट द न्यूमरेटर, तो इसके फैक्टर्स क्या बन रहे हैं, माइनस 3 माइनस 1. हाँ, x माइनस 3 आ जाएगा एंड वील गेट x माइनस 1. डिनोमिनेटर में चेक करो, डिवीजन करो, इसकी डिवीजन करो x माइनस 3 से एंड चेक आउट व्हाट यू गेट इन द डिनोमिनेटर. करेक्ट आंसर किसने दिया अभी, अभया, करेक्ट आंसर, वेरी गुड. अर्शदीप, अब चेक करो, डू द डिवीजन एंड चेक. अगर 2 बार काटना पड़ेगा, 2 बार काटेंगे उसको. ओके, सो दिस वाज x क्यूब minus 2x square minus 6x plus 9 divided by x minus 3. Okay, you can check it out. तो ऊपर आ जाएगा x स्क्वायर, तो ये बना x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, कैंसिल, 3x माइनस 2x x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, तो x माइनस 3 से करते हैं, इससे सॉल्व, प्लस x आ जाएगा यहाँ पे. सो विल गेट x स्क्वायर माइनस 3x
Solving this gets cancelled out. 3x minus xx is minus 3x plus 9. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस सॉरी minus 3. So you get minus 3x plus 9. It gets cancelled out. We are left with x minus 3, x square plus x minus 3. Okay. You can cancel this out further. और आप 3 डाल के चेक कर सकते हो. 3 minus 1 is going to be 2. 3 square is 9 plus 3 12 minus 3 9. 2 by 9 should be your answer. Okay. तो जहां पे फैक्टराइजेशन एक बारी करनी पड़े, एक बारी करो, दो बारी करनी पड़े, दो बारी करनी पड़ेगी. ओके. तो पहला सब्स्टिट्यूशन से तुमने देख लिया कैसे सॉल्व करते हैं, फैक्टराइजेशन से कैसे सॉल्व करते हैं. you've seen this. Similarly, we might have another question. Let us do one more question. Write down divided by x. x tends to 0. अब इसमें भी देख रहे हो कि when you put 0 here, 0 डालने पे ये 2 plus 0 2 रह जाएगा, √2 minus √2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 0 आ जाएगा और नीचे x is equal to 0. अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करते हो तो 0 by 0 इट इज एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म. ठीक है. और कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है काटने वाला, तो इसमें क्या करेंगे, व्हाट डू वी डू हियर. इंडिटर्मिनेट फॉर्म तो एग्जिस्ट नहीं करता, अभी तो लिमिट यूज कर रहे हैं हम लोग. इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं एग्जिस्ट करेगी. व्हाट डू वी डू हियर, वी डू रैशनलाइजेशन. ओके. where we cannot do factorization, we'll do rationalization. Yes, correct. We'll do rationalization. So how do we do rationalization? जैसे हमने तुम्हें पता होगा, कॉन्जुगेट याद होएगा तुम्हें, इसका कॉन्जुगेट ले लेते थे हम, तो वैसे ही हम करेंगे. न्यूमरेटर को रैशनलाइज करना है. व्हाट डू वी डू हियर, so we have √2. just a second, let me make it full screen. Just a second. Okay, so rationalize and solve this. Very good Anuj, very good Arshdeep. So rationalize करो इसको. √2 plus x minus √2 divided by x. अब क्या करना है, into ये सेम लेंगे with the different sign. So we'll have √2 plus x plus √2 और ऊपर भी √2 plus x plus √2. अब ये a minus b a plus b है, तुम्हें सॉल्व करना आता है. It will be a square minus b square. a square कितना हो जाएगा 2 plus x minus b square कितना हो जाएगा 2 divided by we have x into √2 plus x plus √2. ठीक है, simple. This 2 minus 2 gets cancelled out. What are we left with? We're left with x divided by जो भी ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है. ठीक है, 2 plus x plus √2. Now you can put the values. अब उन्होंने क्या पूछा है, x tends to 0, right? Solve this. जगरूप कट जाएगा ना x यार, काट दो. जगरूप सीधा रखना थोड़ी है. ये कॉमन फैक्टर फिर से कट गया ना, वो काटा नहीं तुमने. कॉमन फैक्टर काट दो, ऊपर क्या रह गया, वी गॉट 1 इन द न्यूमरेटर. नीचे क्या है, 2 plus x को 0 डाला plus √2. So 1 by 2 √2. That's the answer. Okay, that's the correct answer. Avneet, Abhya, Pranav, Srishti. That's the correct answer. ठीक है. तो जहां जरूरत पड़े रैशनलाइजेशन की, वहां पे हम लोग रैशनलाइजेशन करेंगे. अंडरस्टूड. ठीक है, चलो. अब रैशनलाइजेशन हो गई के बाद before there are some standard results also. Before I do the standard results, let me give you the basic algebra of limits या फिर operations on limits. ठीक है, operations on limits. तो फर्स्ट ऑपरेशन जैसे हमने सब में ऑपरेशंस किए हैं, वी डिड मैट्रिसेस के ऑपरेशंस, ऐसे इसमें भी ऑपरेशन, या हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के भी ऑपरेशंस किए थे, तो इसमें भी करेंगे कि लिमिट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन. Addition or subtraction. So let's say I have to add up, the addition of two functions is given and we are asked to find out the
limit when x tends to a. एडिशन भी हो सकती है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है. So what happens, we can just separate it out. जैसे हम नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसकी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, इसकी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, बीच में जो भी साइन है वो ऐसे ही रहेगा इंटैक्ट, वही यहाँ पे भी कर सकते हैं. ठीक है. फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यू कैन राइट डाउन फॉर fx you can find out the limit when x tends to a plus or minus whatever sign is there in between. Again you can find out the limit for the other function when x tends to a. Understood? Addition or subtraction simple hai bilkul. Okay, just to give you an example, देख लेते हैं एक फंक्शन. लेट्स से लिमिट ऑफ लॉग कर लेते हैं प्लस when x tends to 10. Okay, you can solve this. Tell me what is the answer. Tell me what should be the answer to this one. Very good. बिल्कुल ठीक है. क्या करना है, अलग अलग लिमिट सॉल्व कर लो दोनों की, इसकी अलग कर लो और ये अलग कर लो, है ना. सब्स्टिट्यूशन करो, सिंपल सिंपल सब्स्टिट्यूशन करो. log x plus limit x tends to 10 sin 9x. Simple, put the values. When you put x 10 here, the limit of log 10 पूछा है. ठीक है. sin 90 पूछा है. तो log 10 की वैल्यू तुम्हें पता है it's 1 और sin 90 की वैल्यू भी तुम्हें पता है 1, बीच में प्लस का साइन है, so answer is going to be 2. Simple. Okay, that's how you do addition. Subtraction भी ऐसी होनी थी. I believe you can do subtraction also. तो करने की कोई जरूरत नहीं है. Second part, let's do scalar multiplication. Scalar multiplication क्या है? When limit is multiplied with a constant या function is multiplied with a constant. Okay, मेरे को लिमिट निकालनी है suppose for a function, लेकिन वो फंक्शन किसी चीज से मल्टीप्लाइड है, x tends to a. ठीक है. तो इसको मैं सीधा सीधा k को आगे लेके आ सकता हूँ. कांस्टेंट कैन बी ब्रॉट इन फ्रंट ऑफ द लिमिट अनचेंज्ड, क्योंकि एनीवेज तुम्हें ये पुट करना है तो फंक्शन के अंदर ही पुट करना है. ओके, वी कैन डू इट दिस वे. ठीक है. सो स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज कि अगर फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो कांस्टेंट को सीधा आगे लेके आ सकते हो. ओके, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ दिस. ऐसे सिंपल जैसे हमने पिछला एग्जांपल किया वही एग्जांपल फिर से कर लेते हैं. सो लिमिट व्हेन x टेंड्स टू 10, आगे मैंने कोई कांस्टेंट लगा दिया 3 मे बी sin 9x minus let's say log x. Okay, something like that. Okay, so what should be the answer to this one? अब देखो इसमें नेगेटिव वाला भी ट्राई हो जाएगा तुम्हारा. एक काम करते हैं, इसको मैं लेट मी जस्ट राइट डाउन log 10x कर लो, क्योंकि 0 आ गया ऐसे आंसर 3 का रूल यूज ही नहीं हुआ. log 10x लिख लो. राइट डाउन log 10x. नाउ टेल मी द आंसर. करेक्ट अनुज, करेक्ट अर्शदीप, वेरी गुड संचित. बाकी लोग क्या करना है? What do you have to do? 3 को आगे ले आओ और लिमिट सॉल्व करनी है तुम्हें इंडिविजुअली. sin 9x माइनस log 10x. सिंपल 10 पुट करो इनके अंदर, बस दैट्स इट. 3 10 पुट करोगे sin 90 is 1 माइनस 10 पुट करोगे log 100 कितना होता है 2. So 3 into -1 will give you -3 as the answer. Okay, so -3 is my answer. Understood? Scalar multiplication clear हो गया सबको? Okay, next is multiplication or division
of limits. मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ लिमिट्स, ठीक है, जैसे हमने एडिशन करी है वैसे ही मल्टीप्लिकेशन भी होगी. लेट्स से लिमिट extends to a of two functions which are being multiplied. तो इसको क्या करेंगे, जैसे तुमने एडिशन में किया है वैसे ही इसमें भी सेपरेट आउट कर दो, ठीक है. एक्सटेंड्स टू ए, वो जो हम ऑपरेशंस यूज करते हैं वो डेरिवेटिव्स में करेंगे जाके, लेकिन लिमिट्स में डायरेक्टली यू कैन डू इट इनटू लिमिट व्हेन एक्सटेंड्स टू ए gx. ओके, सिंपल, अंडरस्टूड. और डिवीजन में भी ऐसे ही होगा कि अलग अलग डिवीजन कर सकते हो. अगर यहाँ पे डिवाइड का सिंबल होएगा तो लिमिट of fx when x tends to a divided by limit of gx when x tends to a. Simple. So let me quickly give you an example. Similar ऊपर वाला example फिर से ले लेते हैं. Let's say sin 9x into log 10x. Tell me the answer. एक ये कर लो first. Second एक और कर लेते हैं. Limit when x tends to 10 sin 9x divided by 4 log 100x. Maybe ऐसा कुछ आ गया. Solve this. Tell me the answer to both of these. Correct answer, Arshdeep. Avneet for the first question, correct answer. Second का बताओ. Second का भी ठीक है. Sanchit, good. Arshdeep, correct for the second one. Monica, correct for the first one. Very good. बाकी लोग भी बताओ फटाफट आंसर. Correct answer, Isha. Correct, Pranav. Monica, Jessica, सृष्टि, अनुज, प्रणव, जगरूप गलत आंसर है. अभया करेक्ट आंसर. सिंपल. तो यहाँ भी देखो देखो पता है क्या है, ये तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि इसको अलग अलग लिखना है, वो तुम्हें स्टेप्स की तो जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा सॉल्व कर लो हमेशा. फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस यू डोंट नीड टू यूज दो स्टेप्स, इसको अलग करो इसको अलग करो एंड सॉल्व दिस. ठीक है. 90 बनेगा 1 log 10 into 10 100 2 बनेगा. सो वहाँ सिंपल आंसर 2 आ गया मेरा. यहाँ पे भी ऐसे करेंगे, 10 को सीधा पुट कर दूंगा, sin 9 into 10 90, 1 आ गया, डिवाइडेड बाय 4 into log 100 into 10, 110 log 1000 हो गया which is 3. So 1 by 12 is the answer. Understood? तो ये दोनों हो गए, ठीक है ना. सो बेसिकली अलग अलग मल्टीप्लीकेशन एंड ऑल सबकी जरूरत तभी पड़ेगी मेरे को अगर मेरे को स्टेप वाइज मार्क्स मिलने हो, ठीक है ना. तो स्टेप्स के कोई मार्क्स नहीं है, I can directly do it. You should just know that how to do multiplications and additions. Understood? Otherwise substitution आती है, हमें factorization पता है, rationalization पता है, अब addition, subtraction, multiplication, division सब पता चल गया. Now we'll do some rules, some standard results of limits, some standard results of limits, ठीक है, जिनमें हम लोग कोई फैक्टराइजेशन वगैरह नहीं कर रहे, कर सकते हैं मे बी नहीं कर रहे. ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिमिट्स आ गए. चलो, टू स्टार्ट विद, इफ यू गेट दिस लिमिट, ठीक है, इसका एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है n, ये जो पावर देखो x की पावर n और जो भी तुम्हारा कांस्टेंट यहाँ पे जो भी वैल्यू आ रही है उसकी पावर n. ओके, और नीचे पे वही x माइनस वही कांस्टेंट आ रहा है, तो n इंटू ए, n ये पावर आई इंटू ए रेज टू पावर n माइनस 1, ठीक है. दिस इज द स्टैंडर्ड रिजल्ट. अभी देखो ये वैसा रिजल्ट है जो डेरिवेटिव निकालते टाइम तुम करते हो, है ना. अगर x रेज टू पावर n का डेरिवेटिव निकालना है तो राइट n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1, तो वैसा ही रिजल्ट है, ये सिमिलर, तो तुम्हें याद रहना चाहिए. ओके, इज इट क्लियर? मैं एग्जाम्पल भी करता हूँ इसका डिस्कस. दिस इज द स्टैंडर्ड रिजल्ट. बस ये याद रखना कि अगर यहाँ x यहाँ a है, यहाँ भी x और a होने चाहिए. ओके, अच्छा, तो अभी जो हमने सबसे
पहला क्वेश्चन किया था, इफ यू रिमेम्बर, जिसमें हमने फैक्टराइजेशन करी थी, we can also do we can also use the standard result there in that question, the first question that we did. What could be the answer? देखो अब तुम्हें पता है कि फैक्टराइजेशन से तो कर ही सकते हैं इसको, बट ये भी तो वैसा ही है ना, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2, ऐसा ही है ना, एक्स रेज पर एन माइनस ए रेज पर एन बाय एक्स माइनस ए। तो इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, ब्रिंग दिस पावर इन फ्रंट, 2 into a आ गया रेज टू पावर n minus 1, so 2 minus 1, so 2 into 2 आंसर इज 4। ये तुम पहले भी तो सॉल्व कर चुके हो फैक्टराइजेशन से, है ना, तो जरूरी नहीं है कि हर बार फैक्टराइजेशन यूज करनी है, वी कैन यूज दिस ऑल्सो, अंडरस्टूड। जहां पे ऐसे स्टैंडर्ड रिजल्ट आएगा वी कैन यूज दिस, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल कुड बी एक्स क्यूब माइनस 27 बाय एक्स माइनस 3, जरूरी नहीं है स्क्वायर पावर्स पे ही है, क्यूबिक पावर पे हो सकता है। अब यहाँ फैक्टराइजेशन तो कर सकते हो, एक्स क्यूब माइनस 27 को लिख सकते हो एक्स क्यूब माइनस 3 क्यूब, लेकिन अगर मेरे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट पड़ा है तो मैं सीधा सीधा क्यों ना सॉल्व करूं, मेरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो मेरे को स्टैंडर्ड रिजल्ट जल्दी आंसर देंगे ना। यस, करेक्ट आंसर, अर्शदीप, अनुज करेक्ट आंसर, कोनिका करेक्ट आंसर, ठीक है। दी स्टैंडर्ड रिजल्ट्स कैन हेल्प मी आउट इन दिस। अभया करेक्ट आंसर, प्रणव करेक्ट आंसर, सृष्टि करेक्ट आंसर। बाकी लोग भी बताओ फटाफट। ओके, 27 करेक्ट, 27 इज करेक्ट आंसर। तो क्या कर सकते हैं, दिस इज ऑल्सो एक्स रेस्ट पर एन माइनस ए रेस्ट पर एन, तो n इंटू ए रेस्ट पर एन माइनस 1, सिंपल। 3 into 3 square which is 27, करेक्ट, ये करेक्ट आंसर है 27। अदरवाइज फैक्टराइजेशन करनी पड़ती है, हम फैक्टराइजेशन करते हैं x माइनस 3 आ जाएगा ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना, डिवाइडेड बाय x माइनस 3, वी कुड हैव कैंसल दिस आउट एंड देन सॉल्व दिस, ठीक है ना। x डालते 3 स्क्वायर 9 हो गया, 3 इंटू 3 9 हो गया, प्लस 9 हो गया, 27 आंसर। ऐसे भी आ रहा है फैक्टराइजेशन से, लेकिन ये कितना क्विक है, तो वी कैन यूज स्टैंडर्ड रिजल्ट्स वेयर एवर वी कैन। ओके, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, देखो x रेस्ट पावर 6 माइनस 64 डिवाइडेड बाय x रेस्ट पावर 4 माइनस 16। देखो ये पहचान है कि x टेंड्स टू 3 था, नीचे x माइनस 3 आना चाहिए, x टेंड्स टू 2 था, नीचे x माइनस 2 आना चाहिए। अब यहाँ भी x टेंड्स टू 2 है, मतलब नीचे x माइनस 2 आ जाएगी किसी तरह से। तो हाउ डू वी हैंडल दिस क्वेश्चन, ट्राई एंड टेल मी द आंसर टू दिस क्वेश्चन, टेल मी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। बताओ क्या आंसर होना चाहिए इसका। वेरी गुड, अनुज, अभया करेक्ट आंसर। अब देखो फैक्टराइजेशन करना पॉसिबल है बट बहुत लेंथी है, क्योंकि x माइनस 2 ऑब्वियसली विल बी अ फैक्टर ऑफ बोथ ऑफ दीज, x माइनस 2 दोनों को डिवाइड करेगा। लेकिन मैं क्या करता हूं, ये इसको इफ आई राइट दिस एज, दिस कैन रिटन डाउन एज x रेस्ट पर 6 माइनस 2 रेस्ट पर 6 बाय दिस इज x रेस्ट पर 4 माइनस 2 रेस्ट पर 4। अगर मान लो मेरा x रेस्ट पर 6 माइनस 2 रेस्ट पर 6 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 आ जाता तो बात बन जाती, वो लिमिट सॉल्व कर सकता हूं मैं। और ऐसे ही मेरे नीचे वाले में भी x रेस्ट पर 4 माइनस 2 रेस्ट पर 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 आता तो बात बन जाती। So I can just multiply and divide this entire function with x minus 2। इससे क्या होगा, इसको इस साइड ले आओ, इसको इस साइड ले जाओ, we can write x raised पर 6 minus 2 raised पर 6 divided by x minus 2 into नीचे x raised पर 4 है minus 2 raised पर 4 divided by x minus 2, समझ रहे हो। तो ये भी वो फॉर्म में आ गया, x raised पर n minus a raised पर n by x minus 2, ये भी उसी फॉर्म में आ गया। We can easily solve this now। इसका क्या आंसर आएगा, इट इज गोइंग टू बी n into a
रेज टू पावर n-1। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। और इसका क्या आंसर आएगा, नीचे जाएगा इसका आंसर डिनोमिनेटर में। We are going to get 4 into 2 raised to power 3-1. You can simply solve this and you'll get the correct answer. Srishti, Pranav, please check out your answers now. So this is, Srishti तुम नीचे वाला शायद भूल गई। 2 raised to power 5 32 हो जाएगा ये। This is 4 into 2 cube minus, sorry 2 3-1 2 square आ जाएगा, 4 आ जाएगा फिर से। तो जो कैंसिल आउट होता है कैंसिल आउट कर दो। 4 into 4 मतलब कितना हुआ? Solve करो and tell me the answer to this. Tell me the answer to this question now. Oh yes, sorry, my mistake. This is 4-1, not 3-1. 4-1 it is. So we can write this as 2 cube maybe. तो देखो 2 क्यूब है, ये भी 2 रेस्ट पर 2 है, 2 रेस्ट पर 5 कट गया सारा का सारा इसके साथ, सो आंसर इज 6। बिल्कुल बिल्कुल अर्शदीप, ऐसे भी कर सकते हो, कर सकते हो। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको क्लियर है ये? Before I move ahead, let me give you one more question quickly. कितने क्वेश्चन हुए हैं पहले? तीसरा था ये। Let's do fourth question of the standard result. Write down x raised to 1 by 4 minus 3 raised to 1 by 4 divided by x raised to 1 by 3 minus 3 raised to 1 by 3. Solve this and tell me the answer. Oh, sorry. Correct answer Abhya, correct answer Sanchit. Arshdeep, check out your answer once again. Yes, Arshdeep, now it's correct. Isha, correct answer. But Isha, वो 3 raised to power minus 1 by 12 है, not 1 by 12. Just give me 1 second, guys.
Okay, so most of you have given the answers now. Pranav, correct answer. Jessica, correct answer. Konika, correct answer. Okay, चलो. Let's look at the answer. I mean, ये भी यही करना था, तुम्हें पता है क्या करना था? So x रेस्ट पर 1/4 माइनस 3 रेस्ट पर 1/4, इसको भी उसी फॉर्म में लेके आने के लिए डिवाइडेड बाय x माइनस 3 कर दो, और नीचे वाले को भी यही करो, डिनोमिनेटर को भी यही करो, डिवाइडेड बाय x माइनस 3. सिंपल, उसी फॉर्म में आ गए सारे. नाउ n 1/4 into a रेस्ट पर n minus 1 डिवाइडेड बाय n into 3 रेस्ट पर 1/3 minus 1. सिंपल, इसको सॉल्व करना है तुमने एंड यू विल गेट योर आंसर. ठीक है ना? आई होप मोस्ट ऑफ द पीपल हैव फाउंड आउट द आंसर ऑलरेडी. जगरूप, तुम्हारा आंसर अभी नहीं आया था तो देख लो एक बार. 3 रेस्ट पर 1/4 minus 1 क्या हो जाएगा? दिस विल बी 1/4 minus 1 is minus 3/4 divided by this will be 1/3 into 3 raised to power 1/3 minus 1 is going to be minus 2/3. सिंपल. ठीक है, तो इसमें इसको जब सिंप्लीफाई करोगे दिस विल बिकम 3/4. 3 ऊपर चला जाएगा ना, 4 नीचे रह जाएगा, इंटू 3 रेस्ट पर माइनस 3/4 है, ये माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2/3. यू कैन सॉल्व दिस नाउ. देखो कितना आ रहा है ये. दिस बिकम्स 3/4 इंटू 3 रेस्ट पर, इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग. 4 3 एलसीएम 12, 3 इंटू 3 माइनस 9 हो गया, 4 2 8 हो गया, माइनस 1/12. 3 रेस्ट पर माइनस 1/12. अगर ऐसे रहने देना ऐसे रहने दो, or else if you want to combine this, you can combine this. This is 1 minus 1/12 by 4, which is 3 raised to power 11/12 by 4. That's the answer. I hope it is clear to everyone. Is it clear now to everyone? चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं. देयर इज अनदर स्टैंडर्ड रिजल्ट. नेक्स्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट के लिए. तो इसमें दो ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए हम लोग रिजल्ट करेंगे. फॉर साइन x divided by x. Okay, now if you directly substitute the value 0 here, sin 0 is 0 and x 0 is 0. 0/0 indeterminate फॉर्म आ गई है ना, लेकिन हम लोग डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे. देयर इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला, देयर इज अ स्टैंडर्ड रिलेशनशिप फॉर दिस, दैट लिमिट of sin x by x when x tends to 0 is equal to 1. ठीक है ना? लिमिट तो तुम्हें पता है क्या होता है. लिमिट होता है कि x 0 एग्जैक्टली नहीं ले रहे हैं हम लोग, बिल्कुल क्लोज की कोई वैल्यू ले रहे हैं, प्रोबेबली 0 से हल्की सी कम वैल्यू ले रहे हैं, तो वहां पे ये अप्रोच करेगा 1 को. ओके, तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये, याद रख लो. सो sin x by x when x tends to 0 is 1. और x टेंड्स टू 0 ही करेंगे क्योंकि बाकी चीजों पे तो ये डिटर्मिनेंट है ना, बाकी चीजों पे तो नहीं जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है, तो इस 0 पे ही आएगा. ओके, ठीक है, दैट्स आल्सो 1. ओके, इनका उल्टा भी हो जाए, x बाय साइन x आ जाए, दैट्स आल्सो 1. ठीक है, ऐसे इसका भी उल्टा हो जाए, x बाय tan x आ जाए, दैट्स आल्सो 1. ठीक है ना? आई होप यू नो दिस रिलेशनशिप. ठीक है, तो कॉज के लिए वी डोंट हैव एनी रिलेशनशिप, और ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो x टेंड्स टू 0 के लिए ही आता है, जब ये आइडेंटिटी हमें यूज करनी है, जब ये स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करना है, बिकॉज अदरवाइज ये डिटर्मिनेट है, अदरवाइज तो निकाला जा सकता है, सिर्फ इसी पे ही यूज करना है. ओके, नाउ लेट्स डू अ क्वेश्चन फ्रॉम एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन. एनसीईआरटी में क्वेश्चन होता है, ये तुमने शायद पहले किया भी होगा, सिमिलर क्वेश्चन. फाइंड आउट द लिमिट ऑफ sin 3x by x when x tends to 0. अब देखो स्टैंडर्ड रिजल्ट जो था वो ये था कि ऊपर अगर x एंगल है तो नीचे भी x होना चाहिए एग्जैक्टली.
ऊपर अगर 5x होता तो नीचे भी 5x ही होना चाहिए। अब यहाँ 3x आ रहा है ऊपर, तो नीचे भी 3x ही होना चाहिए। बिल्कुल ठीक आंसर अनुज, संचित, प्रणव, अर्शदीप। नीचे भी 3 आंसर ही होना चाहिए। तो क्या कर सकते हो, क्विकली इसको 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है ना। तो ये बन गया साइन 3x बाई 3x, और ये 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और हमें पता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन से कि ये 3 कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई हो रहा है 3 बाहर आ जाएगा। सो लिमिट ऑफ साइन 3x बाई 3x, ये तो मुझे मेरे को पता है ये 1 देने वाला है। so 3 into 1 माई आंसर इज 3। ठीक है, द आंसर इज 3। ठीक है, आई हैव दी एनसीईआरटी बुक, इसमें स्टैंडर्ड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट तुम्हें आंसर दे रहे हैं। लेट मी जस्ट सी दोज क्वेश्चंस एंड गिव यू सम ऑफ देम। तो एंड यू विल ऑब्जर्व अ पैटर्न हियर। देखो साइन, एक और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बाय 2x, व्हाट इज द आंसर? बिल्कुल ठीक प्रणव। बिल्कुल ठीक है, 5/2 इज द आंसर। देखो अब इसके अंदर तुम जैसे भी प्रॉपर सॉल्व करना है कर लो। 5x है तो नीचे 5x बनाना है, ठीक है ना। वी इफ यू वांट टू मेक 5x वी कैन मेक 5x हियर, ठीक है। लेकिन जब भी तुम क्वेश्चन कर रहे हो, मेरे को बेसिकली ये क्वेश्चन देने का मेरा पॉइंट क्या था, व्हाट डिड आई वांट टू एक्सप्लेन। देखो अब ये बेसिकली जो भी मेरे पास ये x को ऐसे रख लेते हैं, जो भी ये पार्ट बन रहा है ना, यूजुअली यही मेरा आंसर होता है, ठीक है ना। यहाँ पे भी देखो साइन 3x बाई एक्स था, x निकाल दो, जो भी ये पार्ट बन रहा है यही मेरा आंसर है। 3 सीधा आंसर है, ठीक है ना, डायरेक्ट आंसर, ठीक है ना। आई होप यू आर अवेयर। सो अगर मेरे पास कुछ भी ऐसा आता है, सपोज लेट्स से साइन ax, so what is going to be the answer here? सीधा सीधा आंसर निकाल सकते हो तुम। साइन ax बाय bx, sorry, sin ax by sin bx. This is a question from NCERT. Sin ax by sin bx. Solve this question. बिल्कुल a by b, पिछले वाले में भी a by b, इसमें भी a by b. You can directly get the answer. Sorry. ठीक है ना, पिछले वाले में भी निकाल सकते थे अगर ये बेसिकली साइन ax by bx जो मैंने गलती से लिख दिया था, लेकिन उसका भी तो आंसर a by b ही आएगा, और साइन ax by sin bx का भी आंसर a by b ही आएगा। यू कैन, इफ यू वांट टू सॉल्व इट यू कैन सॉल्व इट, बट मैं तुम्हें स्टैंडर्ड रिजल्ट बता रहा हूँ, ठीक है। These are some standard results. अब एक और स्टैंडर्ड रिजल्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0। ऑब्वियसली मैं लिमिट नहीं लिख रहा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 ही है, लिख देता हूं मैं। x टेंड्स टू 0, साइन स्क्वायर है ax बाय साइन स्क्वायर bx। What is going to be the answer here? What is the answer here? बिल्कुल ठीक। अब करने को तुम सॉल्व इसको तोड़ के कर सकते हो कि साइन ax इंटू साइन ax लिखा है डिवाइडेड बाय साइन bx इंटू
साइन बी एक्स लिखा है, प्रॉपर सॉल्व करना है इसको, एक्स बाय नीचे एक्स ले आओ, इसको ऊपर बी एक्स ले आओ, है ना, यू कैन मल्टीप्लाई डिवाइड ए एक्स हियर, डिवाइड बी एक्स हियर, यू कैन सॉल्व दैट। बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ सीधा सीधा रिजल्ट आएगा यहाँ से देख के। ये देखो इसका तो मैं आंसर पहले निकाला ए बाय बी, इसका भी ए बाय बी, तो ए बाय बी का स्क्वायर या ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, दैट शुड बी द आंसर। ठीक है ना, स्टैंडर्ड रिजल्ट सिंह। ठीक है, एक और एनसीईआरटी के 5 क्वेश्चन थे, पांचों के पांचों फटाफट खत्म कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 3x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है, क्या होएगा? सिंपल है आंसर। अब ये भी वैसा ही है, ये देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी तो स्क्वायर ही है इसका, तो ये 3/1 का स्क्वायर है, सीधा आंसर 9 is the answer. Okay, you don't even need to look at this. So this is how you can save your time in multiple choice questions. You don't have to write the entire thing. तुम्हें स्टेप वाइज लिखने की जरूरत ही नहीं है जो तुम बोर्ड के पेपर के लिए लिखते हो, you don't need that. Okay, जो ग्रुप इसको इंडिविजुअली सॉल्व करोगे ना, दिस विल बिकम sin 3x by x into sin 3x by x। ये पता नहीं पीछे किया था ना हमने, इसका आंसर 3 आया था, मल्टीप्लाई 3 डिवाइड 3, ये 1 दे देगा आंसर, 3 आ जाएगा, इसका भी 3 आ जाएगा, 3 into 3 9। ठीक है ना, मैंने तुम्हें स्टैंडर्ड रिजल्ट बताया है कि जो भी ये देखो यहाँ पे साइन के साथ कुछ भी आ रहा है, नीचे कुछ भी आ रहा है, इसका सीधा सीधा रिजल्ट है साइन ए बाय बी। ठीक है ना, ए बाय बी। ठीक है ना, समझ रहे हो? ऐसे ही अगर साइन मान ले साइन स्क्वायर ए एक्स बाय एक्स स्क्वायर आ गया, तो इसका सीधा आंसर ए स्क्वायर है। यू कैन रिमेंबर दिस स्टैंडर्ड रिजल्ट। ओके, हाँ, तो चलो एक क्वेश्चन और लिखते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी वाले हो गए, और थोड़े से क्वेश्चन करते हैं। देखो, व्हाई एम आई डूइंग ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन ज्यादा करूंगा थोड़े से मैं, बिकॉज दीज आर यूजुअली कॉमन क्वेश्चन विच आर आस्क्ड। ठीक है ना, लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर यूजुअली द कॉमन क्वेश्चन दैट आर आस्क्ड। ठीक है, इसका आंसर बताओ फटाफट, वेरी इजी क्वेश्चन। वेरी गुड, संचित, प्रणव, अर्शदीप, अनुज, करेक्ट आंसर। बिल्कुल ठीक है, क्या कर सकते हो, इसको तोड़ सकते हैं, है ना। इसका भी हमें पता है 3 आंसर आने वाला है लिमिट से, और लिमिट्स के अलजेब्रा में पता था मेरे को कि माइनस है तो माइनस से जाएगा, इसका 2 आंसर आएगा। 3 - 2 1 इज द आंसर। वी डोंट नीड टू डू दोस हैवी स्टेप्स एंड एवरीथिंग, वी डोंट नीड दैट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन लिखो। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये कौन आंसर नहीं दे रहा है बिल्कुल? स्वर्णिम, आर यू देयर? स्वर्णिम, स्वर्णिम चला गया क्लास से। ओके ओके, लिमिट x टेंड्स टू 0, क्वेश्चन लिखो, x cos x plus sin x divided by x square plus 10x. Try solving this question, tell me the answer. Correct answer, Sanchit, Pranav. अब देखो, डायरेक्टली क्यों नहीं कर सकते इसको? जगरूप, डायरेक्टली नहीं कर सकते हो, तुमने डायरेक्टली किया है। डायरेक्टली नहीं कर सकते, तुम देखो नीचे 0 और ये भी 0, डिनोमिनेटर 0 बन गया ना, यहाँ भी 0 इंटू कॉस 1, कॉस 0 खैर 1 होता है, 0 बन गया ये भी, प्लस साइन 0 इज ऑल्सो 0, ये सारा इंडिटरमिनेट फॉर्म है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ आर 0।
तो इससे नहीं करोगे जगरू, गलत आंसर है वो। प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा इसको। देखो दिखते ही इसको दिमाग में आना चाहिए कि आइडेंटिटी है मेरी, कि साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स होता तो मेरी बात बन जाती, tan एक्स डिवाइडेड बाय एक्स होता तो बात बन जाती। तो सारे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को एक्स से डिवाइड कर लो, ठीक है ना। एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, ठीक है। और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि एक्स एक्स तो एनीवेज कटने ही है, यू कैन डू दैट। तो ये एक्स और एक्स आपस में कैंसिल हो जाएगा, व्हाट आर वी लेफ्ट विद, वी लेफ्ट विद cos x प्लस बचा sin x बाय x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर बाय एक्स, एक्स बचेगा प्लस tan x बाय x। अब तो मेरे को पता ही है, अब इसकी लिमिट सॉल्व करनी है x टेंड्स टू 0 पे, तो cos 0 कितना होता है 1, पुट दैट 1 हियर प्लस sin x बाय x, x टेंड्स टू 0 के लिए क्या रिलेशनशिप होता है, वी ऑलरेडी डन दैट, इट इज 1 डिवाइडेड बाय x को 0 लिखा हुआ है, और tan x by x के लिए रिलेशनशिप क्या है, अगेन 1, so we get 2 by 1, my final answer is 2. Is it clear now, Jagru and everyone else, is it clear? Okay, next question. तो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में, जब लिमिट्स के ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन सॉल्व करने, जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, हो सकता है तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करना पड़े जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी थी, जब हमने ट्रिग्नोमेट्री किया था, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी, हो सकता है उनको यूज करना पड़े, ठीक है। सो let me give you a question. Find out the limit of this relationship 1 minus cos x by x square when x tends to 0. Okay, मेरे को पता है cos x के लिए मेरे पास कोई रिलेशनशिप नहीं है, I will try to convert this into sin, क्योंकि sin के लिए मेरा रिलेशनशिप ऑलरेडी है, ठीक है। करो सॉल्व। करेक्ट आंसर श्री प्रणव, वेरी गुड। वेरी गुड हर्षदीप, प्रणव, संचित, जेसिका, कौनिका, करेक्ट आंसर। तो कौन सा रिलेशनशिप यूज कर सकते हैं सबसे पहले, आई नो cos 2x, अगर तुमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में याद होएगा तुम्हें, cos 2x was equal to 1 minus 2 sin square x, है ना। दिस इज व्हाट वी स्टडीड देयर। अब साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ इसको मैं, तो इसको देख के देखो क्या होएगा, अगर cos x की बात करूं मैं क्या होगा, ये 2x डबल एंगल था, 2x डबल एंगल, 2 sin स्क्वायर x है, x हाफ एंगल आया था, तो अगर यहाँ पे x रखता हूं मैं तो 1 minus 2 sin स्क्वायर x by 2 आ जाएगा यहाँ पे। इज इट क्लियर? तो मैं क्लियरली देख के बोल सकता हूँ कि 1 माइनस कॉस एक्स जो है, 1 माइनस कॉस एक्स उधर गया तो ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। इज इट क्लियर? ठीक है ना, चलो गुड। सो दिस गेट्स मॉडिफाइड, व्हाट डू वी गेट हियर, ऊपर न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, वी गेट 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब आगे सॉल्व करना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं है, ये 2 सीधा सीधा बाहर निकल जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 बाय एक्स स्क्वायर है, ये तो मैं बताया ही था मैंने पहले, ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो जो भी यहाँ पे बन रहा है, ये 2, खैर इसको मैं 1/2 लिख देता हूँ, लेट मी राइट इट एज 1/2 ताकि तुम्हें क्लैरिटी हो समझने में। 1/2 x, मैंने तुम्हें बताया था कि ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर वुड बी आंसर, 1/2 स्क्वायर वुड बी द आंसर, बट आगे 2 लगा हुआ है, सो इट शुड बी 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर, सो फाइनल आंसर इज 1/2। ओके ओके, that's my answer, you can quickly do it। ठीक है, क्लियर है, अगला क्वेश्चन करते हैं एक और फटाफट।
So sine 3x into sine 4x divided by x square. X tends to 0. Find out the answer to this quickly. ये भी बहुत easy है. Very good अनुज. बहुत ही easy question. Good. तो क्या करना है? स्प्लिट हो जाएगा ये. एक एक्स इधर आ जाएगा, एक एक्स इधर आ जाएगा. इसका आंसर पता चल रहा है 3 है, इसका 4 है. सीधा 12 आंसर. ओके, 12 इज द करेक्ट आंसर. गुड, वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करो. अभी मैं चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चंस. अच्छा चलो, पहली बात, जब भी ये मैं 3x या 4x जो भी लिख रहा था, कंसिडरिंग कि दीज आर रेडियंस. ओके, ये 3x 4x हम लोग जनरली कंसिडर करते हैं दीज आर रेडियंस. ओके, नाउ इट इज पॉसिबल कि मेरे को रेडियन में क्वेश्चन ना आए, मेरे को डिग्री में क्वेश्चन आ जाए. फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू अ क्वेश्चन. लेट्स से sin 5x degree into sin 8x degree, okay, divided by x square. और जो x square नीचे है वो है रेडियंस में. तो क्या करना पड़ेगा? पहले डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना. सॉल्व दिस क्वेश्चन. डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं पता है ना सबको? 180 degree is equal to pi radian, we know that. So 1 degree is equal to pi by 180 radians. Yeah, x degree is equal to x pi by 180 radians. Everyone knows that, right? So use that and find out the answer to this question. नो और स्लीप आंसर में पाई रहेगा. अर्शदीप, नॉट 1 by 810. पाई तो रहेगा ना. पाई पाई कहाँ जाएगा? वुड बी पाई स्क्वायर. नो, नॉट द करेक्ट आंसर प्रणव. ये संचित, इसको सिंप्लीफाई करके बताओ आंसर क्या आएगा. जैसे का करेक्ट आंसर x तो रहेगा ही नहीं ना ईशा. x would not be there. So when you are solving this, तो sin 5x डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है. पहले sin 5 इंटू x इंटू पाई बाय 180 करना पड़ेगा ना मेरे को, इंटू sin 8x इंटू पाई बाय 180 करना पड़ेगा. तो जहां भी जो कैंसल आउट होता है सबसे पहले तो कैंसल आउट करेंगे. बिल्कुल ठीक आंसर अर्शदीप. नाउ पौनी का करेक्ट आंसर. जो भी कैंसल आउट होता है कैंसल आउट कर दो. ये 36 बचा, 4 2 जा 4, 45 जा 45 बचा. तो वी आर लेफ्ट विद साइन 5x बाय 36 बाय x कर लेते हैं इसको, इनटू लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2 पाई बाय 45 डिवाइडेड बाय x. ओके, 2 पाई x बाय 45 डिवाइडेड बाय x. ओके, अंडरस्टूड. अब आगे का पार्ट तो बहुत इजी है. अब देखो, x और x यहाँ पे है. बेसिकली दिस इज साइन पाई बाय 36 x बाय x. x x है
तो पाई बाय 36 डायरेक्टली बाहर निकल आएगा इसका आंसर, पाई बाय 36 इंटू, इधर भी ऐसे ही करो, एक्स एक्स ऑलरेडी है, एक्स के आगे जो लगा हुआ है वो सीधा आंसर आ जाएगा, 2 पाई बाय 45। नाउ यू कैन सिंप्लीफाई दिस, जो भी कैंसिल आउट होता है यू कैन कैंसिल दिस आउट, ठीक है ना। दिस बिकम्स पाई स्क्वायर बाय 45 इंटू 18 कितना बनेगा, 450 इंटू 360, 810, दिस शुड बी द आंसर। ओके, पाई स्क्वायर बाय 810, दैट्स द आंसर। इज इट क्लियर? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक और। राइट डाउन, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 cos square x divided by 1 minus sin cube x। ओके, अब देखो x टेंड्स टू 0 नहीं है, x टेंड्स टू पाई बाय 2 है, बट पाई बाय 2 डायरेक्ट डालने पे भी ये क्या होगा, cos स्क्वायर पाई बाय 2, पाई बाय cos पाई बाय 2 कितना होता है, cos पाई बाय 2 इट्स 0, यू नो दैट 0, तो ऊपर न्यूमरेटर में 0 आ जाएगा, नीचे 1 माइनस साइन क्यूब एक्स, साइन पाई बाय 2 कितना होता है 1, 1 का क्यूब 1, 1 माइनस 1 ये भी 0 आ जाएगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगी, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगी। इनडिटर्मिनेट फॉर्म हटाने के लिए मेरे को पता है क्या कर सकते हैं, अगर आइडेंटिटी बनती है आइडेंटिटी बनाओ, अगर नहीं बनती ऑब्वियसली x टेंड्स टू 0 नहीं है तो आइडेंटिटी नहीं बनेगी, बनेगी सब्स्टिट्यूशन ही करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ अगर कॉमन है तो विल कैंसिल इट आउट, इफ देयर इज समथिंग कॉमन आई विल कैंसिल दैट आउट, ताकि इंडिटर्मिनेट फॉर्म कट जाए। अब मेरे को ये तो पता है ना कि cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर x, क्योंकि वी नो दिस रिलेशनशिप cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, वी नो दिस रिलेशनशिप, एंड नीचे 1 माइनस sin क्यूब x है, तो जो भी कैंसिल आउट होता है कैंसिल आउट कर सकते हो, यू कैन गेट द आंसर। करेक्ट आंसर ईशा, प्रणव, अर्शदीप, संचित रॉन्ग आंसर। ऑब्वियसली मेरे को x को पाई बाय 2 पुट करना है, बट जो भी कैंसिल आउट होता है उसके बाद ये ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स ऊपर एंड 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स, फॉर्मूला तुम्हें पता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये इनडिटर्मिनेट जिसको बना रहा है उसको हमने काट दिया, क्योंकि 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0 यही इंटरमिनेट बना रहा है, ये काट दिया, तो बाकी की वैल्यूज पुट कर दो, यू शुड गेट दी आंसर। 1 प्लस साइन एक्स की जगह क्या डालना है, पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन पाई बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 2, यू कैन सॉल्व दिस, ठीक है ना। ये 1 आ रहा है, सो 1 प्लस 1 वी गेट 2, 1 प्लस 1 प्लस 1 ये भी 1 प्लस 1 प्लस 1 स्क्वायर ये भी 3 आ जाएगा, सो 2 by 3 इज द आंसर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। तो अगर साइन टेन के अलावा कुछ आ रहा है, x टेंड्स टू 0 नहीं है, x टेंड्स टू इट्स समथिंग एल्स, पाई बाय 2 आ गया, पाई बाय 4 आ गया, कुछ भी ऐसा आ गया, तो उसमें ऑब्वियसली और इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है तो कुछ ना कुछ कैंसिल आउट करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं एक और, ये कौन सा था, 6th 7th, एक और करते हैं। x tends to not 0, let us do pi by 4 for cot x minus 1 divided by 2 minus cosecant square x, ठीक है। ट्राई सॉल्विंग दिस। अब ये भी इंडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगा, देख के पता चल रहा है। कौन सा पार्ट चाहिए अनुज, ये देख लो, ये वाला पिछला क्वेश्चन। हो गया अनुज, डन। चलो, अभी cot x cot पाई बाय 4,
cot 45 कितना होता है याद होएगा तुम्हें? cot 45 इज 1, 1 minus 1 0। याद कैसे रखने हैं? तुम्हें बताया था मैंने cot 45 या tan 45 होता क्या है? tan 45 sin by cos होता है, sin 1 by √2 होता है, cos 1 by √2 होता है, कैंसिल आउट होके 1 बनता है, और cot उसका उल्टा वो भी 1 ही होता है। So cot pi by 4 minus 1 is going to be 0 divided by 2 minus cosecant square pi by 4। तो पाई बाय कोसिकेंट 45 कितना होता है? √2 का स्क्वायर, ये भी 0 ही आ रहा है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म है तो मेरे को कुछ कैंसिल आउट करना पड़ेगा। ऊपर cot x माइनस 1 है तो शायद cot वाला कुछ आएगा नीचे भी। तो देखो कोसिकेंट का cot के साथ कोई रिलेशनशिप अगर है तो यूटिलाइज दैट। करेक्ट आंसर अर्शदीप। cot और कोसिकेंट का क्या रिलेशनशिप है? वी नो दैट 1 plus cot square x is equal to cosecant square x। You can use that here. Try using that here and see if you can cancel out something। कुछ कॉमन कैंसिल आउट कर सकते हैं तो कर लो। करेक्ट आंसर अभया। करेक्ट आंसर नहीं, बाकी कोई गलत आंसर है। बाकी जेसिका, अनुज, संचित गलत आंसर है। सो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज 1 plus cot square x, right? So when you solve it further, ये cot x minus 1 divided by 2 minus this is 1, 2 minus 1 1 रहेगा, minus cot square x। So cot x minus 1 by 1 minus cot square x, which can be written as 1 minus cot x 1 plus cot x, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा ये। अब इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं, लेकिन इसको अगर उल्टा कर दें तो, साइन में उल्टा कर दें तो नेगेटिव कॉमन ले लो। 1 minus cot x divided by 1 minus cot x 1 plus cot x, you can cancel this out। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर दो। 5/4 था, so -1 divided by 1 plus cot 5/4। okay, solve this, tell me the answer now। cot 5/4 कितना होता है सबको पता है? अभी तो डिस्कस किया। 1 plus cot 5/4 is 1, so -1/2, that's the correct answer। clear? क्लियर हो गया सबको? क्विकली नेक्स्ट कर लेते हैं एक और। x tends to pi/2 again, so question is 1 minus sin x divided by cos square x, find out the limit। ठीक है, x tends to pi/2, देख के पता चल रहा है तुम्हें, ऊपर भी 1 minus 1 0 हो जाएगा, नीचे 0 ही है। इंडिटर्मिनेट फॉर्म है, इंडिटर्मिनेट फॉर्म कैंसिल आउट करनी पड़ेगी। कैंसिल आउट कैसे होगी? ऊपर वाला 1 minus sin x जैसा कुछ नीचे भी आएगा। ठीक है ना? वेरी इजी क्वेश्चन। वेरी गुड अर्शदीप, अनुज, प्रणव, कौनिका, ईशा, वेरी गुड। करना क्या है? इंडिटर्मिनेट कैंसिल करना है किसी भी तरह से। ठीक है, बिल्कुल ठीक। अभया, वेरी गुड। यस जगरूप, यू कैन यूज दैट। ऑब्वियसली वही यूज करेंगे। नीचे क्या आएगा? ऊपर 1 minus sin x है, नीचे cos square x को 1 minus sin square x लिख लेंगे, और 1 minus sin x is equal to 1 minus sin x 1 plus sin x। इंडिटर्मिनेट फॉर्म कैंसल्ड, बचा क्या? 1 by 1 plus sin x, क्या बोला है? pi/2 डाल दो यहाँ पे, 1/2 आंसर आ गया तुम्हारा। क्लियर? सिंपल है बिल्कुल।
ठीक है, चलो। सो आज एक दो ऐसे क्वेश्चन और कर लेते हैं एंड विल रैप इट अप हियर, रेस्ट ऑफ द पार्ट विल टेक अप इन द नेक्स्ट क्लास। एक क्वेश्चन और करो। tan square x divided by 1 minus cos x। ठीक है, ट्राई सॉल्विंग दिस। इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है, फिर से करो सॉल्व इसको। करेक्ट आंसर कौनिका, वेरी गुड। कॉज 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 जगरू। संचित रॉन्ग आंसर। प्रणव वर्षी बनुज करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर जेसिका अभया। तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि ऊपर 1 माइनस कॉज एक्स जैसा कुछ आ जाए ताकि कैंसिल आउट हो जाए इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो tan स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं? secant स्क्वायर एक्स माइनस 1। आई होप यू रिमेंबर दैट। क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू secant स्क्वायर एक्स, वी नो दैट, है ना। और ये लिखने से क्या फायदा? secant क्या होता है? 1 बाय cos, so we can write this as 1 by cos square x minus 1 divided by 1 minus cos x। when you solve it further क्या होगा? या यहाँ आ जाएगा 1 minus cos square x divided by cos square x divided by 1 minus cos x। ओके, ऊपर क्या बन जाएगा? 1 minus cos x 1 plus cos x divided by cos square x into 1 minus cos x। this can get cancelled out now। तो हो गया मेरा इंडिटरमिनेट फॉर्म कैंसिल। पुट करके देखो, अब जीरो डालने पे कैंसिल आउट नहीं होना चाहिए ये। सो 1 प्लस cos 0 इज 1, cos 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, सो द आंसर इज 2। ओके, चलो एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं फटाफट, 10 तक राइट डाउन। ओके, सॉल्व दिस नाउ। एक पाई वाला भी कर लेते हैं, x टेंड्स टू पाई। सॉल्व दिस क्वेश्चन। Actually, check out your answer once again. साइंस चेक कर लो एक बार। सो वी नो साइन पाई तो पता है ना, इज 0 and cos pi is -1। Keep that in mind। Keep that in mind while solving this। So, क्या होगा यहाँ पे? साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं? मेरे को ऑलरेडी पता है, cos स्क्वायर एक्स -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos क्यूब एक्स है। तो उसको क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस cos क्यूब एक्स को 1 प्लस cos एक्स 1 माइनस cos एक्स
plus cos square x. We know this relationship, right? तो ऊपर क्या आएगा, cos x minus 1 cos x plus 1 डिवाइडेड बाय नीचे भी cos x plus 1 है and 1 minus cos x plus cos square x gets cancelled out. इनडिटर्मिनेट जो बना रहा था इसको वो कैंसिल आउट हो गया. cos pi की वैल्यू क्या है, -1 by 1 minus cos pi की वैल्यू इज -1, ओके, प्लस cos pi की वैल्यू -1 का स्क्वायर. सो वी गेट -2 इन द न्यूमरेटर. डिनोमिनेटर में 1 + 1 2 हो गया, +1 3 हो गया. -2/3 शुड बी द आंसर. ओके, इट्स नॉट 2/3, इट्स -2/3. ऑलमोस्ट सबने 2/3 आंसर दिया है. Oh, sorry, I guess I made a mistake. Yes. 1 minus cos x. Correct. Yes, 1 minus cos square x. ठीक है. So this is going to be 1 minus cos x. ठीक है, पॉजिटिव ही होएगा. So 1 minus -1. ठीक है. So the answer is 2/3. Okay, correct answer. ठीक है. So we're done for the day. So these are all the questions in limits of trigonometric functions. बाकी आगे कुछ और रिलेशनशिप्स, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स बचे हैं, वो भी हम कर लेंगे नेक्स्ट टाइम विल फिनिश दिस. ठीक है. चलो, so we'll wrap it up for today. Rest we'll see if we have to do it tomorrow or day after. We'll finish limits. Okay. और ये स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन है, यही आते हैं स्टैंडर्ड तुम्हें. ओके, चलो, see you all then. Bye bye, take care, have your lunch. Let me just have a word with the ma'am Jagrup. I guess 3-4 students have who had asked her to for the comprehension practice. They're not available today, so she'll let you know in a while. Okay, chalo, see you then. Bye bye, take care, bye.